A very good morning to all our students and welcome to the online class of English. In today's class, we will discuss a new chapter from prose section, that is chapter 5, My Childhood by APJ Abdul Kalam. Abdul Kalam was an Indian aerospace scientist who served as the 11th President of India from 2000 to 7. He was born and raised in Rameshwaram, Tamil Nadu, and studied physics and aerospace engineering. This lesson is an extract from the book Wings of Fire, the autobiography of APJ Abdul Kalam. It talks about his childhood, during which he earned his first wages. During this time, he faced religious discrimination and was able to overcome it with the support of others who were not like traditional people. He was motivated by the science teacher to undertake higher studies. सो बच्चों जो चैप्टर है वो लिया गया है फ्रॉम द बुक विंग्स ऑफ फायर द ऑटोबायोग्राफी ऑफ APJ अब्दुल कलाम। एंड इस चैप्टर में स्पेशली बात की गई है कलाम सर के चाइल्डहुड के बारे में एंड कैसे उन्होंने फर्स्ट अर्निंग की एंड बचपन में ही कैसे उन्होंने रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया एंड उससे ओवरकम भी किया विद द सपोर्ट ऑफ अदर्स हु आर नॉट लाइक ट्रेडिशनल पीपल। एंड ऑल्सो ही फर्दर सेज दैट he was motivated by the science teacher to undertake higher studies. उनके लाइफ में गहरा इन्फ्लुएंस था उनके साइंस टीचर का जिन्होंने इनको हमेशा मोटिवेट किया इनकरेज किया ओके टू अंडरटेक हायर स्टडीज़। नाउ बिगिन विद द चैप्टर। I was born into a middle class Tamil family in island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. My father, Jainul Abidin, had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. He had an ideal helpmate in my mother, Ashiamma. I don't recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. अब्दुल कलाम सर का जन्म मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिली 1931 में हुआ था इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम, तमिलनाडु. And in his childhood, he was greatly influenced by his parents, his teacher and his friends. और बचपन से ही उन पे गहरा इन्फ्लुएंस था, प्रभाव था उनके पेरेंट्स का, टीचर्स का एंड उनके फ्रेंड्स का. Okay. Abdul's father, Jainul Abidin, was not much educated, but he was a very generous and kind person. अब्दुल के फादर जैनुल आबदीन बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं थे, एजुकेटेड नहीं थे, बट वो एक जनरस और काइंड पर्सन थे. एंड he was not rich but provided a secure childhood to Abdul and his brothers and sisters. वो बहुत ज़्यादा रिच नहीं थे, फिर भी उन्होंने एक सिक्योर एटमॉस्फेयर में अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग की. Abdul's mother name was Ashiamma. Abdul inherited honesty and self-discipline from his father and faith in goodness and deep kindness from his mother. अब्दुल की माँ का नाम आशियम्मा था और अब्दुल आगे कहते हैं कि उनके अंदर जो क्वालिटीज़ दिखती है वो उनको विरासत में मिली है. ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन ये उनके अंदर आया है उनके फादर से. एंड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस ये क्वालिटी उनको मदर से मिली है विरासत में एज अ गिफ्ट. आई डोंट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे. एंड आगे अब्दुल कहते हैं कि मुझे याद नहीं है कि हर रोज़ मेरी माँ कितने लोगों को खाना खिलाती थी. ठीक, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है, बट आई एम क्वाइट सर्टन दैट फॉर मोर आउटसाइडर्स एट विथ अस. बट मुझे इतना याद है कि जब हम लोग मीन्स हम हमारी फैमिली जब खाना खाने बैठती थी तो हमारे साथ बहुत सारे आउटसाइडर्स भी थे जो हम लोग इकट्ठा बैठ के सभी लोग खाना खाते थे. आई वॉज वन ऑफ मेनी चिल्ड्रन, अ शॉर्ट बॉय विथ रेदर undisguised looks, born to tall and handsome parents. We lived in our ancestral house, which was built in the middle of the 19th century. It was a very large pucca house made of limestone and brick on the Mosque Street in Rameshwaram.
My austere father used to avoid all inessential comforts and luxuries. However, all necessities were provided for in terms of food, medicine, or cloth. In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materially and emotionally. अभी अब्दुल अपने लुक के बारे में थोड़ा सा बात कर रहे हैं। वो बताते हैं कि उनकी शॉर्ट हाइट थी और लुक भी बहुत नॉर्मल था। ऑल्दो उनके पेरेंट्स खूबसूरत थे, अच्छे थे, बट ये शायद से उनके ऊपर नहीं गए थे। ठीक, ये लोग अपने पुश्तैनी घर में रहते थे जो कि एक पक्का मकान था, लाइमस्टोन और ब्रिक का बना था, ऑन द मॉस्के स्ट्रीट इन रामेश्वरम। एंड आगे वो बताते हैं कि इनके फादर जो है हमेशा उन्होंने अवॉइड किया था कंफर्ट और लग्जरीज़ को। ठीक, however all necessities were provided for in terms of food, medicine or clothes. In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materially and emotionally. But उनको मिलता था, although वो इन अवॉइड करते थे इन एसेंशियल कंफर्ट्स लग्जरीज़, बट उनको अच्छा खाना, मेडिसिन, क्लॉथ, ये सारी चीज़ें इनकी फैमिली को मिलती थी। आगे अब्दुल कहते हैं कि मैं ये कह सकता हूँ कि हम सब का मीन्स मेरे और मेरे भाई बहन को एक सिक्योर चाइल्डहुड मिला था फ्रॉम आवर पेरेंट्स, बोथ मटेरियली एंड इमोशनली। मीन्स घर घर में चीज़ें भी थीं और इमोशनली भी हम लोग स्ट्रॉन्ग थे। मीन्स हमारे पेरेंट्स ने कोशिश की थी कि भले ही वो रिच नहीं थे, वो बहुत ज़्यादा लग्जरीज़ नहीं थी उनके पास जो हम लोगों को वो देते, बट उनके पास जो भी था उन्होंने उसको स्ट्रांगली हमारे साथ शेयर किया। दैट्स वाई हम लोग इमोशनली भी रिच थे और मटेरियली भी। The Second World War broke out in 1939 when I was 8 years old. For reason I have never been able to understand, a sudden demand of tamarind seeds erupted in the market. Second World War अभी चल रहा था 1939 में, और तब मेरी एज 8 साल की थी और शायद से ये इतनी एज नहीं थी कि मैं समझ पाता, मैं ये अंडरस्टैंड कर पाता कि अचानक से टैमरिंड सीड्स की इतनी डिमांड क्यों बढ़ गई मार्केट में। I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on Moscow Street. So मैं ये काम करता था कि टैमरिंड ट्री का जो सीड्स होता था उसको इकट्ठा करता था और मॉस्को स्ट्रीट में ले जाकर उसको बेचता था। A day's collection would fetch me the princely sum of one anna. My brother-in-law Jainul Abidin would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headlines. In Denami, our area being isolated was completely unaffected by the war. So और एक दिन से कुछ पैसे भी मुझे मिल जाते थे, एक आना रोज़ मैं कमा लेता था और मेरे ब्रदर इन लॉ जैनुल आबदीन मुझे सारी स्टोरीज़ बताता था वॉर के बारे में। ऑल्दो उस टाइम पे मेरी एज इतनी नहीं थी कि मैं वॉर की बारीकियों को समझ पाता। ठीक, और वॉर विच आई वुड लेटर अटैम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दिनामी और एरिया बीइंग आइसोलेटेड। और जो न्यूज़पेपर था दिनामी, उससे ये पता चलता था कि इनका जो एरिया था वो एकदम आइसोलेट किया गया है एंड वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर, और वॉर से इनका एरिया बचा हुआ था। मीन्स अभी उसका असर इनके एरिया पे नहीं आया था। बट सून इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन दी एलाइड फोर्सेस एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड। एंड तभी कुछ अनहैप्पीनेस डिक्लेयर किया गया, इमरजेंसी लगाई गई। The first casualty came into the form of suspension of the train halt at रामेश्वरम स्टेशन। और तब जो है रामेश्वरम स्टेशन पर जो सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन था वो रोका गया। द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू and Dhanush Kodi that forced my cousin Samsuddin was who distributed newspaper in Rameshwaram to look for a helping hand to cash the bundles, and as if naturally I filled the slot. Samsuddin helped me earn my first wages half a century later. I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time. So
जो ट्रेन था इनके ही एरिया में रोकी गई थी उसको, मीन्स सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन रामेश्वरम स्टेशन को बनाया गया था। और तब इन्होंने पहली अर्निंग करना स्टार्ट कर दिया था, जब इनके कज़िन शमसुद्दीन ने इनको कहा। इनके जो कज़िन थे शमसुद्दीन, वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे न्यूज़पेपर को रामेश्वरम में। सो उनको एक हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत थी, सो जो कि इस बंडल को डिस्ट्रीब्यूट करें। सो इन्होंने शमसुद्दीन ने इनको ऑफ़र किया कि तुम मेरी हेल्प करो और इससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। सो इस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ की फ़र्स्ट अर्निंग भी की, माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। और ये बहुत खुश हुए, एक्साइटेड थे अपनी पहली कमाई करके। ओके, every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authority. I inherited honesty and self-discipline from my father, and from my mother I inherited faith in goodness and deep kindness, and so did my three brothers and sister. I had three close friends in my childhood: Ramanand Shastri, Arvindam, and Sri Prakashan. All these boys were from Orthodox Hindu Brahmin families. As children, none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious differences and upbringing. So आगे कलाम कहते हैं कि सभी बच्चों को कुछ ना कुछ ख़ासियत, कुछ क्वालिटीज़ उनको विरासत में मिलती है उनके पेरेंट्स से, उनके एंसेस्टर से। सो इनको भी मिला, एक अच्छे एनवायरनमेंट में इनकी अपब्रिंगिंग की इनके पेरेंट्स ने, और कुछ क्वालिटीज़ इनमें आई: सेल्फ डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, गुडनेस एंड डीप काइंडनेस। ठीक, और सो डिड माई थ्री ब्रदर एंड सिस्टर। आई हैव थ्री क्लोज फ्रेंड्स। इनके 3 भाई बहन थे और इनके 3 बेस्ट फ्रेंड थे जो बहुत क्लोज थे इनके, रामानंद शास्त्री, अरविंदम एंड श्री प्रकाशन। जो तीनों लड़के थे वो एक रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंग आवरसेल्फ बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग। ऑल्दो इनका रिलीजन एक दूसरे से बिल्कुल अलग था, बट कभी भी इसका इफ़ेक्ट इनके फ्रेंडशिप पर, इनके रिलेशन पर नहीं पड़ा, बिकॉज इसका क्रेडिट देते हैं अब्दुल कलाम अपनी अपब्रिंगिंग को। ठीक, कि भले ही रिलीजियस डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट थिंकिंग अच्छी इसलिए थी क्योंकि एक हेल्दी और पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में अपब्रिंगिंग हुई थी उनकी। Ramanand Shastri was the son of Pakshi Lakshman Shastri, the high priest of father. Arvinda went into the business of arranging transport or visiting pilgrims, and Sri Prakashan became a catering contractor for the Southern Railways. So जो तीनों दोस्त थे इनके, रामानंद शास्त्री, अरविंदम एंड श्री प्रकाशन, इनका बहुत इन्फ्लुएंस था इनके लाइफ में। ये तीनों लोग बहुत क्लोज थे और कभी इनके फ्रेंडशिप पर इनके धर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। ठीक, सो स्टूडेंट, आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. So till then, keep learning and keep practicing. Thank you for now.